آئیں عزیزوں، ہم سب پھولوں اور تالیوں کے ساتھ ڈاکٹر بشپ فرہاد بھٹی کو، جن کا تعلق ملیشیا سے ہے، ویلکم کرتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، تھینک یو جیزس، تھینک یو لارڈ۔ تمام گروپ ممبرز وکٹری ان جیزس منسٹریز انٹرنیشنل، گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا خداوند جو کہ عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ کل دنیا سے پیار کرتا ہے۔ عزیزو، آج پہلی دفعہ میں اس واٹس ایپ کے اوپر اس طرح سے ریکارڈ میسج کے ساتھ پیغام کرنے والا ہوں، اور مجھے تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ اس میں شارٹ لمٹ ہوتی ہے ریکارڈ کرنے کی، تو میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی توقعات پہ پورا اتر سکوں۔ تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، وہ بائبل کا رہنما اور آج کا رہنما۔ بیسیکلی یہ کمپیریزن سٹڈی ہے، اور اس کمپیریزن سٹڈی کو ہم بہت ہی سادہ الفاظ کے ساتھ کوشش کریں گے سمجھنے کے لیے، کیونکہ خداوند ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے باعث برکت بنیں۔ سب سے پہلے میں اس بات کو واضح کروں گا کہ لیڈرشپ ہے کیا، اور لیڈرشپ کا مطلب کیا ہے۔ پہلا جو اس کا سادہ جو مطلب ہے، اس کا میننگ ہے، وہ ہے رہنمائی کرنے والا، راہ دکھانے والا، اور خود اس راہ پر چل کر دکھانے والا، سچائی کی پہچان کرانے والا، نجات کی راہ دکھانے والا، قربانی دینے والا، اصلاح کرنے والا، عاجز بننے والا، محبت کرنے والا، خدا کا خوف رکھنے والا، خادم بننے والا، برداشت کرنے والا، مستقل جد و جہد کرنے والا، دعا اور روزہ میں ٹھہرنے والا، پاکیزگی رکھنے والا، سوچ کو روحانی بصارت سے پڑھنے والا اور سمجھنے والا، معاف کرنے والا، پردہ ڈالنے والا، جرت کرنے والا۔ یہ ساری باتیں بائبل کے لیڈر کی ہیں، جو کہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے بائبل کی صورت میں۔ بائبل میں بہت سارے لیڈرز ہیں۔ جب ہم پیدائش کی کتاب سے ملاکی تک پڑھتے ہیں پرانے عہد نامے میں، تو ہمیں بہت سے لیڈر ملتے ہیں جس میں انبیاء اکبر ہیں، انبیاء اصغر ہیں، جس میں چھوٹے نبی ہیں، جن کی چھوٹی کتابیں ہیں، چھوٹے صحیفے ہیں، اور جن کی بڑی کتابیں ہیں وہ انبیاء اصغر ہیں، انبیاء اکبر ہیں، سوری۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو لیڈرز کا میں آج آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کروں گا، جو کہ بہت ہی نمایاں اور واضح ہیں۔ ان میں سے پہلا جو ہے موسیس، موسیٰ، اور دوسرا ہے ڈیوڈ۔ کیونکہ یہ دونوں نبیوں کی باتیں جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور دل کو قوت دیتی ہیں، اور عام ایماندار کو بہت زیادہ جو ہے وہ حوصلہ دیتی ہیں اور ہمت دیتی ہیں، طاقت دیتی ہیں۔ موسیس وہ ہے جس نے جو اسرائیل میں اس نے اپنی ساری شان و شوکت کو چھوڑا، محل کی، کیونکہ وہ محل میں ایک شہزادے کی طرح اس نے تربیت پائی، لیکن جب اس کو خدا نے چنا اپنی قوم کے لیے، قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے، تو اس نے اپنی ساری شان و شوکت کو چھوڑ کر خدا کی پیروی کی۔ سب سے پہلی بات، اب موسیس کی لیڈرشپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ساری شان و شوکت کو خدا کے لیے چھوڑا، یعنی کہ قربانی دی۔ نمبر دو جو اس نے کیا کی، خدا کی پیروی کی، اپنی مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو اس نے پورا کیا۔
फिर मोसेस वो लीडर है जिसने इसराइली कौम को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर जो है वो प्रॉमिस लैंड पर लेकर गया। अब मोसेस का ये किरदार जो है ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक था और खुदा की मर्जी के मुताबिक था। और दूसरे नंबर पर जब हम दाऊद नबी के मुतालिक सीखते हैं तो दाऊद नबी जो है वो नबी भी है और बादशाह भी है। दाऊद वो है जिसको खुदा ने भेड़ बकरियां चराते हुए चुना, और दाऊद नबी वो नबी है जो कि जब वो भेड़ बकरियां चरा रहा था तो खुदा ने जब उसको चुनाव किया है तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक फौजी कमांडर के सामने जिसका नाम जाति जूलियत है, वो उसके सामने लड़ने के लिए नहत्ता खड़े हो जाता है। सिर्फ उसके पास एक कमान थी। अब ये कमान जो है, अब देखते हैं कि एक पूरी फौज जिसने वो कमांडर, उसके पास पूरी फौज भी है और वो कमांडर भी है और उसने अपने आप को कंप्लीटली कवच किया, जिसने हेलमेट भी पहना हुआ है, उसने ब्रेस्ट प्लेट भी पहने, उसने अपनी चेस्ट को कवर भी किया, हर चीज उसके पास, उसने अपने आप को कवर किया हुआ था। लेकिन ये इसके पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ इसके पास वो लड़ने की ताकत जो क्या थी वो था ईमान। जब हम इन बातों को, क्योंकि ये लीडरशिप की बात है कि वो ईमान से चलते हैं ना कि आंखों देखने पर। अजीजों, मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ना चाहता हूं दाऊद नबी के हवाले से। पहला तवारीख उसका 14वां बाब और उसकी 10वीं आयत। आप इसको अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी वजाहत के लिए आप 8वीं आयत से भी पढ़ सकते हैं। टाइम का शॉर्ट होने की वजह से मैं आपके साथ सिर्फ एक ही आयत पढ़ूंगा, क्योंकि आगे कुछ और बातें हैं जो आज के मैसेज में वादे करना जरूरी हैं। तो यहाँ पर पहला तवारीख उसका 14वां बाब और उसकी 10वीं आयत में कुछ ऐसे मरकूम है। तब दाऊद ने खुदा से सवाल किया, क्या मैं फलस्तियों पर चढ़ जाऊं? क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? खुदावंद ने उसे फरमाया, चढ़ जा, क्योंकि मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर खुदा की बरकत हो। इस आयत में हम ये सीखते हैं कि दाऊद ने बहुत सारी जंगें लड़ी, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और इन लड़ाइयों में वो फातेह हुआ। आज इस बात को, अब इस चीज को कंपैरिजन करने की जरूरत है कि आज हम हमारी जिंदगी में हम जो रूहानी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, जो रूहानी तौर पर फेस कर रहे हैं, रूहानी तौर पर हम चीजों को, परसिक्यूशन को और भी बहुत सारी जो लम्हात हैं, ये चीजें हम देख रहे हैं, उनको हमने कैसे अपनी लड़ाइयों को लड़ती हैं? क्या हम दाऊद की तरह खुदा से सवाल करते हैं, खुदा के सामने झुकते हैं, खुदा से पूछते हैं कि हमारे साथ ये मसले हैं, ये मसाइल हैं, क्या हम ऐसा करें? क्योंकि दाऊद ने अगर इन जंगों पर फतह पाई है तो दुआ के वसीले से, खुदा के साथ मशावरत के साथ, खुदा के रहनुमाई में, क्योंकि खुदा की रहनुमाई जो है वो बहुत ही जरूरी है। खुदा से इजाजत लेना, क्योंकि खुदा के इजाजत के बगैर जो है फतह मंदी मुमकिन नहीं होती। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो हम नहीं लड़ रहे होते, बल्कि हमारा खुदा जो है वो हमारे साथ लड़ रहा होता है। जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारी जंग खुद लड़ूंगा। वो हमारी जंग खुद लड़ता है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके पास ऐसी रूहानी ताकतें हैं, ऐसी रूहानी कुव्वत है कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता और हम जंग को फतह कर लेते हैं। ये ना जोर से, ये ना ताकत से, बल्कि खुदा के रूह से हो जाएगा। हमें लड़ने की जरूरत नहीं। जब हम अपनी सारी फिक्रें, सारी अपनी परेशानियां अपने खुदा को देते हैं, अपने आप को आजिज बनाते हैं और अपने सरेंडर कर देते हैं। जैसे कि अभी मोसेस को देखते हैं तो उसने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया और खुदावंद की, पहले वो महल में रह रहा था, 40 साल तक उसने महल में तरबियत पाई, फिर उसके बाद 40 साल वो बियाबान में। अब
महल की शान शौकत, महल का रुतबा, महल की अथॉरिटी वो छोड़कर अपने आप को उसने सरेंडर कर दिया खुदा के सामने। आज की लीडरशिप की अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो आज की लीडरशिप क्या खुदा के सामने सरेंडर करती है? अपनी खुदी का इनकार करती है, अपनी अथॉरिटीज को खुदा के सामने रखते हैं, खुदा के सामने वो सारे इख्तियार को देते हैं, खुदा को अपनी जिंदगी में काम करने की इजाजत देते हैं। अजीजों, इस बात को समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो जब हम दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में पढ़ते हैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद का इल्हाम जो है वो हमारी इस्लाह के लिए है, तरबियत के लिए है, हमारी करेक्शन के लिए है। अब जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को खुदा के सामने आजिज बनाते हैं। यह है खुदावंद के पाक कलाम के उस स्टैंडर्ड के मुताबिक लीडरशिप, जिसने अपने आप को खुदा के सामने आजिज बनाया, सरेंडर कर दिया और खुदावंद की मर्जी को अपने अंदर पूरा होने दिया। और देखिए, फिर उन्होंने जंगें लड़ी हैं, उन्होंने वो फाते हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि आज की लीडरशिप क्या खुदा के कलाम के मुताबिक चलने के लिए अपने आप को आजिज बनाती है, अपने आप को सरेंडर करती है, अपनी अथॉरिटीज को खुदा के लिए छोड़ते हैं। अब ये तो इस्राएली और यहूदी लीडरशिप की बात थी कि खुदावंद ने उनको फतह दी लड़ाइयों में और बियाबान में, किस तरह से खुदावंद ने सुपरनेचुरली अब लोगों को जो है वो खुदा ने उनको खुराक मुहैया की आसमान से। अब हम यहूदा के कबीले के उस शेर बबर की मुतल्लिक जानते हैं जो कि हमारा नजात दहिंदा है और जिसका नाम यसु अल मसीह है, जिसको इब्रानी ज़बान में यशुआ हमशिया कहा जाता है और जिसको यूनानी ज़बान में यशुआ कहा जाता है और इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। अगर अब हम ये इस बात को समझने की जरूरत है कि लीडर्स में कौन सी खूबियां होनी चाहिए और कौन सी जो है वो अपने अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। यसु मसीह के मुतालिक अगर हम पैदाइश से लेकर मलाकी तक पढ़ते हैं, जिसमें अंबिया अकबर भी हैं, अंबिया असगर भी हैं, जिसमें यसाया है, जर्मिया है, जिक्रिया है, नहमिया है, बहुत सारे आप लिस्ट इसको पढ़ सकते हैं। सब तमाम ने खुदावंद यसु मसीह के मुतालिक पेशन गोइयां की और इन पेशन गोइयों के से जाहिर होता है कि एक मुनज्जी आने वाला है, एक नजात दहिंदा आने वाला है जो कि अपनी कौम को नजात देगा। अजीजों, मैं आपके सामने आज इस बात को और ज्यादा वाज़ेह करना चाहता हूं कि वी आर क्रिश्चियन बिकॉज ऑफ क्राइस्ट। हम मसीही हैं मसीह की वजह से। हम मसीही हैं मसीह की वजह से। और अगर हम मसीह की इन बातों पर गौर करते हैं तो इस हमें ये वाज़ेह हो जाएगा कि यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो कि यहूदी कबीले से था, क्योंकि मुक़द्दसा मरियम यहूदी, यूसुफ यहूदी, तमाम जो शागिर्द थे वो भी यहूदी। खुदा जो है वो हमें जो इस चीज के लिए, क्योंकि उसने हमारा मुनज्जी जिस्मानी तौर पर वो यहूदी था, क्योंकि वो मरियम, मुक़द्दसा मरियम के वतन से हमारे लिए एज ए लीडर आया, जिसने गैर कौमों के लिए, क्योंकि हम तो यहूदी नहीं है, ना ही हम इसराइली हैं, वी आर जेंटाइल, हम गैर कौम हैं जो ईमान के वसीले से निजात पाते हैं यसू पर ईमान रखने से। और मसीही लीडर की जो खूबियां क्या, अब जो पहले हमने पुराने अहदनामे से सीखा, अब यसू मसीह जो है वो नए अहदनामे में है,
तो अब हम नए अहदनामे की लीडरशिप की उन बातों को सीखेंगे कि लीडरशिप में कौन से असूल और उसकी क्या निशानियां होनी चाहिए और उनमें क्या क्या चीजें जो जरूरी हैं। यीशु अल मसीह जो कि हमने अभी जो लीडरशिप का जो मतलब देखा कि वो कुर्बानी देने वाला है, बर्दाश्त करने वाला है, मुसलसल जदोजहद करने वाला है, अब इस बात को और दुआ और रोजा रखने वाला है। अब इस बात को हम गौर से अगर हम समझते हैं तो यीशु मसीह भी इसी की हमें तालीम देते हैं। लूका की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 40 और 46 आयत में आप बागौर समझे इस बात को कि खुदा यीशु मसीह जबकि उनको पकड़वाया जाने वाला था और उन पर ये आजमाइश का पीरियड शुरू होने वाला था, तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। दुआ जो है वो हमारा पहला हथियार है कोई किसी भी जंग को लड़ने के लिए, हमें आजमाइश से बचने के लिए। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम दुआ करो। जब वो जाके उन्होंने दुआ की और उनका पसीना जो है वो खून की बूंदों में गिरा। लेकिन खुदा जब यीशु मसीह जब वापस आते हैं और देखते क्या है कि शागिर्द फिर सोए हुए हैं, फिर खुदा यीशु मसीह उनको तुम क्यों सोते हो, खुदा ने उनको फिर उठाया और कहा दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। अब जरूरत इस बात की है कि अगर हम लीडर्स जो हैं या हमारे लीडर्स में दुआ करने की कमी है, रोजा रखने की कमी है या खुदा के साथ चलने की कमी है, जब हम अपने आप को सरेंडर नहीं करते खुदा के हजूर में और खुदा जो है वो हमारी बात की तरफ मतवज्जो नहीं होता, हमारी दुआओं की तरफ खुदा की तवज्जो नहीं होती, क्योंकि हम पूरे दिल के साथ ये काम नहीं कर रहे होते। खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से अपने खुदा से मोहब्बत रख। क्योंकि खुदामंद यीशु मसीह की जब हम लीडरशिप की तरफ देखते हैं तो खुदामंद ने इस बात में जब वो बागे गतसमनी में दुआ कर रहे थे, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हट जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अब यीशु मसीह की लीडरशिप में हम देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो ना कि मेरी मर्जी पूरी हो। जब हम खुदा पर ये छोड़ देते हैं तो फिर खुदा हमें संभालता है, क्योंकि ये सारा कुछ जो कुछ भी खुदा यीशु मसीह के साथ हो रहा था ये नबियों की पेशन गोइयां थी। ये जो उसका पैदा होना, उसका इस दुनिया में तालीम देना और इस तरह से सलीब पर चढ़ाया जाना, ये सारी पेशन गोइयां हैं। अजीजों, दुआ से जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट शुरू होती है। जब हम दुआ में खुदा के साथ टाइम गुजारते हैं तो हमारी खुदा के साथ रफाकत जो है, इंटीमेसी विद क्राइस्ट, जब हम खुदा के साथ दुआ में वक्त कर रहे होते हैं तो हमारा खुदा के साथ रिलेशन कायम होता है। हम खुदा के साथ डायरेक्ट दुआ के जरिए से बात कर रहे होते हैं। खुदा हमका डायरेक्ट कनेक्शन जो है हमारे साथ जुड़ा होता है। जैसे हम फोन पर बात कर रहे होते हैं तो एक दूसरे से, अगर फोन पर देखिए, फोन में कभी कभी डिस्ट्रक्शन आ जाती है, रिकनेक्ट होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम खुदा के साथ जब हमारा तल्लुक खत्म होता है उस वक्त डिस्ट्रैक्शन पैदा होती है, उस वक्त जो है वो रिकनेक्ट होना शुरू होता है। जब हम आजी के साथ खुदा के सामने झुकते हैं दुआ में और फर्मा बरदारी के साथ खुदा के सामने झुकते हैं तो फिर जाके हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। और जब देखें कि जब हमारी दुआ सुनी नहीं जा रही, हम फर्मा बरदार नहीं हैं, हम दुआ में कायम नहीं रहते, तो इसका मतलब है डिस्ट्रैक्शन पैदा हो रही है, रिकनेक्टिंग हो रही है। और रिकनेक्ट भी होने के लिए कभी कभी रिकनेक्ट भी नहीं होता बल्कि कॉल कट जाती है। जो अब रिकनेक्ट होने के लिए जब हमारी मुकम्मल तौर पर कॉल कट जाती है तो इसका मतलब है खुदा जो है वो हमसे खुश नहीं है, हमारी दुआ से भी।
تو ہمیں اپنا دعا کا معیار جو ہے وہ خدا کے مطابق بنانا چاہیے. کیا خدا کو یہ ہماری دعا پسند نہیں ہے کہ کنیکشن کٹ گیا؟ یہ بات سمجھنے کے لیے ہے کہ لیکن نارمل چیزیں ہیں جو کہ ہمیں روحانی لیول پہ بھی سکھاتی ہیں. اور ایک اور بات پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ خداوند کو غرور پسند نہیں ہے لیڈرشپ میں. خداوند کو غرور سے نفرت ہے. اگر اس کے لیے آپ ایک حوالہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور میں حوالے سارے نہیں پڑھ سکوں گا تو اس کے لیے ظاہر ٹائم شارٹ ہے، ٹائم کی قلت کی وجہ سے آپ میرے ساتھ ایک حوالہ پڑھ سکتے ہیں. انسان اور اس کا 16واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے خداوند کو غرور سے نفرت ہے. وہ لیڈرشپ میں ہو، وہ کلیسیا میں ہو، وہ کسی بھی شخص میں ہو، خدا کو غرور پسند نہیں ہے. کیونکہ خدا محبت ہے. خدا محبت ہے کیونکہ آپ جب ہم یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں، اور یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا جو ہے اس دنیا سے محبت کرتا ہے. وہ ایک صرف کرسچن سے محبت نہیں کرتا، وہ مسیحی سے محبت نہیں کرتا، وہ ایک ڈینومینیشن سے محبت نہیں کرتا، وہ پینٹیکوسٹل سے نہیں محبت کرتا، وہ یہوہ وٹنس سے محبت نہیں کرتا، وہ کیتھولک سے محبت نہیں کرتا، وہ پروٹسٹنٹ سے محبت، وہ تمام سے محبت کرتا ہے. اس کے لیے سب ایک کلیسیا ہے. یہ ڈیفرنٹ ڈینومینیشنز اس دنیا میں ہے، یہ انہوں نے اپنے آپ کو بانٹا ہے، لیکن خدا جو ہے وہ پوری دنیا سے، ایون وہ مسلم سے پیار کرتا ہے، ہندوؤں سے پیار کرتا ہے، سکھ سے پیار کرتا ہے، بدھسٹ سے پیار کرتا ہے، وہ ایتھیسٹ سے پیار کرتا ہے، وہ تمام دنیا سے پیار کرتا ہے. صرف اتنی بات ہے کہ خدا جو ہے وہ صرف اس کے لیے شرط یہ ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا ان سب کو اس نے اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا، اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا ہے. خدا جو ہے وہ ہمیں روحانی بیٹے ہونے اور روحانی بیٹی ہونے کا حق بخشتا ہے صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے، کیونکہ خدا کو اس دنیا سے محبت ہے. عزیزو، جب ہم خدا کے اسی طرح کلام میں بڑھتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے آپ کو خداوند پر اور اس کے ارادوں پر قائم کرتی ہے تو خداوند ان کی پیروی کرتا ہے. خداوند ان کی پیروی کرتا ہے، ان کے آگے چلتا ہے، ان کے دائیں بائیں ہر جگہ پہ. وہ ہمارا ہراول بھی ہے، وہ ہمارا چنڈاول بھی ہے. وہ ہمارے آگے آگے چلتا ہے، ہماری راہ کو تیار کرتا ہے. اس کے فرشتے ہماری نگہبانی کرتی ہے. لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں اور ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ خداوند میں قائم رہتے ہیں. آج میں ایک اور بات آپ کے سامنے جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت ہی خاص اور عام ایماندار کے لیے سمجھنے کے لیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لیڈر کوئی نہیں ہے، کون لیڈر ہے، کیسا لیڈر ہے، کہاں سے لیڈر آئے گا. خداوند کا کلام کہتا ہے، لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے کہ میں نے تم کو اختیار دیا ہے، میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ تم سانپوں، بچھوؤں اور دشمن کی ساری طاقت پر غالب آؤ. کیا یہاں پر لکھا ہے بشپ میں نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے، پاسٹر میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، ڈیکن میں نے تمہیں اختیار دیا ہے؟ نو. خداوند ڈائریکٹلی ہر ایماندار سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تم کو اختیار دیا ہے. لوگ لیڈر ڈھونڈتے رہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کدھر لیڈر ڈھونڈ رہے. خدا نے آپ کو لیڈر بنایا ہے. اب جب یسوع مسیح کی طرف دیکھتے ہیں، یسوع مسیح نے بھی ایسے کہا ہے کہ پاس تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اب شاگرد کون بنا سکتا ہے؟ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ شاگرد کون بنائے گا؟ جو استاد ہوگا. جو استاد ہے وہی شاگرد بنائے گا نا. یسوع مسیح نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ کہا ہے کہ پس تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. آج دور یہ ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ کوئی غائبی لیڈر ڈھونڈ رہی ہے.
ईमानदार जो है, वो सारे ईमानदार जो है, सारे मसीही जो है, लीडर कहां से आएगा? कौन लीडर बनेगा? कौन लीडर होगा? What? God has given you authority already. खुदा ने ऑलरेडी आपको जो है वो इख्तियार दिया हुआ है। आप अपने उस इख्तियार को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप अपने उस लीडरशिप के इख्तियार को क्यों नहीं समझ रहे? जो खुदा के कलाम को जानने वाले हैं, जो इख्तियार रखने वाले हैं, जो खुदा के कलाम को समझते हैं, उनके पास ये इख्तियार है, उनके पास ये अथॉरिटी है। ये है बाइबल की टीचिंग, ये है बाइबल का लीडरशिप। समझने वाली बात यह है कि अगर हम खुदा की इस बात को नहीं समझेंगे तो फिर जो हाल पाकिस्तान में आप देख रहे हैं वही है। मोस्टली जब लीडरशिप जो खुद से, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत से हैं लेकिन बरगजीदा थोड़े हैं। जब लोग खुदा की राह से भटक जाते हैं, खुदा के कलाम को छोड़ देते हैं, खुदा के वादों को छोड़ देते हैं, खुदा के उस पैरामीटर को छोड़कर उसके म्यार से नीचे गिर जाते हैं, तो खुदा जो है उनको छोड़ देता है। खुदा उनको छोड़ देता है और वो खुदा से वो हट जाते हैं। लेकिन अजीजों, खुदा का कलाम ये फरमाता है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि मैंने तुमको इख्तियार दिया है। खुदा ने हमें इख्तियार दिया, इस इख्तियार को समझने की जरूरत है। अब अगर हम मसीही कौम की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि इतने आपको तनकीद नगार जो है वो नजर आएंगे। हर बंदा तनकीद कर रहा होगा, हर बंदा तनकीद करना वाला है। मसीह का ये किरदार नहीं है। मसीह ने कहा है कि तुम इस्लाह करो, तुम एक दूसरे की बेहतरी करो, एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बनो। खुदा उनके कलाम में तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो और एक दूसरे के लिए दुआ करो। आज हमारी पूरी मसीही कलीसिया में इतनी नेगेटिविटी है। पहली तो बात यह है कि वो अब तक लीडर ढूंढ रहे हैं, खुदा ने इनको लीडर बनाया हुआ, ये लीडर ढूंढ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि नेगेटिविटी, एक दूसरे की जेलसी। व्हाट इज दिस? दिस इज डिमोनिक स्पिरिट, इवल स्पिरिट दैट वर्किंग इन द क्रिश्चियन कम्युनिटी, ऑल इन क्रिश्चियन कम्युनिटी। क्योंकि एक डिनोमिनेशन जो है वो दूसरी से नफरत करती है, दूसरी जो है तीसरी से नफरत करती है। इसी तरह एक दूसरे के दरमियान में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। व्हाट इज दिस? This is all the wickedness. This is all the evil spirits work. ये तमाम जो है, ये सारी चीजें जो हैं, ये उन बुरी स्पिरिट्स की वजह से तमाम कलीसियाओं में काम कर रही हैं, जो कि खुदा के उस मेयार को, खुदा की उस लीडरशिप को पाकिस्तान में काम करने नहीं दे रही। अब ये मैं किस लिए कह रहा हूं? ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि खुदा का कलाम जो है वो कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नमक हो। अब खुदा का नूर, अभी देख नूर कैसा है। अब आप एक बंद कमरे में एक छोटा सा बल्ब है, वो चलाते हैं तो पूरा कमरा रोशन हो जाता है। अब देखें, पूरी अंधेरी रात होगी, जब चांद निकलेगा तो रोशनी हो जाएगी। खुदा जो है, खुदा ने आप सबको रोशनी कहा है, आपको रोशन दिल और रोशन ख्याल दिया है। ये नेगेटिविटी को, अब मसीहों को जरूरत है सलाहकार बनने की। एक दूसरे की सलाह करें, तनकीद की बजाय सलाह पे तो जो दे, तो ताकि ये मसीही कौम बन सके। मसीह की उस तालीम को फॉलो करना शुरू करें, तब लोगों में जो है वो बेदारी आएगी, फिर मसीही लीडरशिप जाहिर होगी। आज की लीडरशिप जो है वो मसीह के खुदाम के कलाम के मुताबिक नहीं है। और इस लीडरशिप को जो है हमें कंडेम करना है, क्योंकि जब तक यीशु मसीह के उस रूह की तालीम हमें नजर नहीं आती, जो जैसा कि हमने इस पैगाम के शुरू होने से पहले मैंने बताया था कि ये सारी बातें जो है, लीडरशिप का मतलब है कुर्बानी देने वाला, जज्बा रखने वाला, जुर्रत करने वाला और अपने आप को आजिज बनाने वाला। अब यीशु मसीह ने हमें इस चीज की डायरेक्टली जो है और खुद मिसाल बनकर दिखाया है। यीशु मसीह ने अपने सेल्फलेस हुआ है और उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए हैं।
जब यसु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए हैं तो इस बात से ये बात वाज़ेह है कि उसने एक लीडरशिप, जब आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि जूइश जो कल्चर में, जूइश जो हिस्ट्री हमें बताती है, जो हिस्ट्री तवारीख की किताबें बताती हैं कि जूइश हाउस होल्ड में जो सबसे नीच काम था, सबसे जो नीच काम था वो खादम का, एक गुलाम का ये काम होता था कि वो पांव धोना होता था। लेकिन यसु मसीह ने इस नीच काम को कबूल किया और उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए। इट मीन्स दैट टोटली सरेंडर टू द गॉड, खुदा के सामने अपने आप को पेश कर दिया। खुदा यसु मसीह ने भी तालीम भी यही दी है, तो जो तुम में बड़ा बनना चाहे वो अपने आप को छोटा बनाए, वो सबकी खिदमत करे, वो सबका खादम बने। खुदा जो है हमसे प्यार करता है, उसने ये म्यार रखा है। आज की लीडरशिप जो है, सबसे पहले उनकी डिमांड ये है कि प्रोटोकॉल होना चाहिए, वहां पर बैनर लगे होने चाहिए, फूल होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यसु मसीह ये चाहता है बिब्लिकल लीडरशिप में नो प्रोटोकॉल। वो सादा दिल, सादा ईमान वाले और सादगी के साथ काम करते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीले से हमारी लीडरशिप को, आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आए अजीजों, दुआ करें आज की लीडरशिप के लिए, पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए, वर्ल्ड की लीडरशिप के लिए। देखें, ये एक लम्हा फिक्रिया है। आपने दुनिया में कहीं भी मस्जिद बिकती नहीं देखी, आपने दुनिया में कहीं पे भी मंदिर बिकते नहीं देखे, लेकिन सिर्फ लीडरशिप की कमजोरी की वजह से देखे कि चर्च बिकते हैं। दैट इज वेरी टेरेबल। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन। थैंक यू बिशप साहब, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ आज के कलाम की सच्चाइयों को पेश किया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत बाबरकत कलाम के लिए। गॉड ब्लेस यू। और खुदावंद आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आज हमने आपके कलाम से बहुत बरकत पाई है, और मेरा ईमान है कि जितने लोगों ने आज आपका कलाम सुना है जो कि लीडरशिप पे था, तो बहुत ही ज़बरदस्त था। हम सबको बड़ी बरकत मिली है। थैंक यू। आया अभी वक्त हो चुका है कि हमने जो आज का कलाम सुना है उसके लिए हम खुदा के हुजूर दुआ करें, खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करें उस कलाम के लिए। तो मैं सिस्टर फरजाना बूटा को पेज पे वेलकम करती हूँ कि सिस्टर जी आप आएँ और कलाम खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जुल जलाल रब्बुल फ़ाइल लश्करों के रब, माल के दो जहाँ, माल के कोनो मकां, अज़ली अब्दी बादशाह, तू जो भला खुदा है, तू जो लश्करों का रब है, तू जो हमारा पालनहार है, तू जो हर रोज़ हमारी फ़िक्र करता है और एक नए दिन और एक रात का इजाफा करता है। इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए और आज की खूबसूरत घड़ी के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शे कि हम खूबसूरत शाम में मिल बैठ के तेरे नाम को जलाल दे सके। और मेहरबान ज़िंदा जलाली आसमानी बाप कुदरत वाले खुदा, आज के कलाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तेरे बंदा के वसीला से हमने सीखा। जलाली खुदा, आज तो अपने बंदा को और ज़्यादा बरकत दे और जलाली खुदा अपने जलाल के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि तेरा बेटा इसी तरह तुझ में बढ़े और तेरे नाम को जलाल देता है और तेरी भटकी रूहों को तेरी तरफ लाने का सबब बने। ज़िंदा जलाली आसमानी बाप कुदरत वाले खुदा, आज तेरे बेटे ने जो लीडरशिप पे मैसेज दिया जलाली खुदावंद, हमें इस लायक बना कि हम तेरे बंदा के वसीला से, इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ और जितनी जाने तेरी हजूरी में झुकी हुई हैं इन सबको बड़ी बरकत दे। आज के कलाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो हमारी जिस्मानी खुराक के साथ साथ हमारी रूहानी खुराक की भी फ़िक्र करता है और हमें वो अता करता है, इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो शुक्रगुजारियों के लायक है, वापस मानी मेरी फरियाद को सुन कबूल कर। मैंने जो कुछ ईमान से मांगा सो यकीन से पाया। यीशु के जलाली बबरकत नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन।